इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना इज नॉट अपने साथ टाइम स्पेंड करना, वो तो फोन के साथ आपने किया। 24 में से जब 20 घंटा फोन के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो टाइम नहीं निकलेगा। 14 साल की एज में आपने अपनी पहली बुक लिखी है, वो भी सेल्फ हेल्प के ऊपर। कोचिंग में ये समझ आया कि टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी यू शुड राइट अ बुक। I personally feel that any age group you always need your girls because your girls are your biggest support system, and if you have 3-4 girls around you, पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत या ताकत आप में आ जाते है। आई हैव हैड ऑलवेज दिस मंत्रा, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत। एंड सक्सेस आपको सक्सेसफुल बना सकता है, बट फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सो देयर आर टू वेज। तो कुछ भी प्रॉब्लम या चैलेंज आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लर्निंग। वन वे, यू हैव अ सोल्यूशन, फाइंड अ सोल्यूशन। यू डोंट हैव अ सोल्यूशन, छोड़ दो। जब ट्रम्बल होते तो क्या करें? डीप ब्रीथिंग। आई थिंक ऑफ कोर्स क्राइंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग जो आप कर सकते हो। दिन के 8 hugs are compulsory for your natural emotional growth. मैं तो हमेशा चीज कहती हूँ, लाइफ में कुछ भी करो ना, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लाइफ 90% सॉर्ट हो जाएगी खुद ही। डोंट जस्ट एग्जिस्ट, प्लीज लिव। लाइफ इज वेरी फाइनाइट, हमें लगता है इनफाइनाइट है। जो करना है ना कर डालो, एंड जस्ट परस्यू योर पैशन। अगर आपने बर्थ लिया इस लाइफ में तो यू हैव अ पर्पस, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। वो आपकी खोज है जो सेल्फ खोज से आएगी। Hello, everyone, and welcome once again to another episode of A Happy World Within, a show, a podcast where we only talk about happiness, hope, the unlimited potential that we have in ourselves, the joy that we are spreading to the world. And in this process, my only aim is to bring forward such guests which are an inspiration for you all. And the guest that I have today with me on my podcast show is an inspiration to me as well. I think she is going to be the youngest guest I would ever have on my podcast show. All of 19 years of age, and the list of accomplishments she has is mind boggling. She has at least 30 plus awards to her name. She has had 100 plus stage appearances. She is a Guinness World Book recorder, and she wrote her first book at the tender age of 14 and has been awarded as the youngest self help book writer in the country. So, I'm very proud to introduce you all today to this young bundle of talent with whom I am hugely inspired, Meher. So, hi, Meher. Hello, हेलो, and welcome to the show. थैंक यू सो मच। And for all the people who are seeing her, seeing someone on social media is something different. But when you look at that person in person, she is a young, petite girl, delicate. Like, I just want to keep on hugging and cuddling her. So, Meher, your story has been very, very inspirational. I just want कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे फॉलोअर्स को बताएं आपकी जर्नी कब, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुई? हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड टू बी such an achiever at such a young age? I forgot to mention one thing. She's a life coach also, a certified life coach also. That is one more accomplishment that I forgot. So please. So 19 years back there was a girl जो हॉस्पिटल में she was born and वहाँ पे डॉक्टर ने कहा only 1 in 1000 of the babies have this immune disorder. तो हेल्थ जो था मेरा शुरू से ही when I was born was not very good and is still not very good because immunity low रहती है. But as I grew up मैं अपने peers को देखती थी, they used to hang out, they used to do all the fun, but मुझे हमेशा लगा वो चीज़ फैक्टर मिसिंग था. एंड एज आई ग्रू अप मोर इन माई 9th इन माई 10th, जब मैंने वो बुक्स खोली मुझे लगा ये बुक से बाहर भी एक दुनिया है। तो जो बुक्स मुझे नहीं सिखा पाई मुझे लगा शायद लाइफ सिखा दे। मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती थी एज अ टीनेजर, मैं वो किताबों में आंसर्स ढूंढती थी पर मुझे कभी मिले ही नहीं। तो ये समझ आया स्कूल ने हमें इंजीनियर डॉक्टर बनना सिखा दिया लेकिन लाइफ जीनी कैसी है वो सिखाना भूल गए। यू सो नो you're टॉकिंग कि टीनेज में आपको ये रियलाइजेशन हो गया। टीनेज में तो लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने सब्जेक्ट कौन सा चूज करना और पढ़ना क्या और करना क्या। You are talking about life at that tender age of 13-14 years. आई थिंक वहां पे मुझे थोड़ा लकी चांस मिल गया कि आई हैड माई मदर एज माई इंस्पिरेशनल फिगर। तो उन्होंने साइकोलॉजी की हुई है, सो शी अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड साइकोलॉजी। तो व्हेन शी सॉ मी एंड व्हेन शी वाज रेजिंग मी, उनको लगा मेरा बच्चा थोड़ा कर सकता है, अलग है। तो हर मम्मी को लगता है अलग है, तो मम्मी ने कहा ओके आई जस्ट पुट इन माई एफर्ट्स। तो
इट स्टार्टेड ऑन शी बीइंग माय इंस्पिरेशनल फिगर एंड शी स्टिल इज, वाह! जितना सपोर्ट मुझे उनसे मिला। तो वहां से मुझे पता चला, जब मम्मी मुझे बोलती थी पार्क में जाके ना जस्ट ऑब्जर्व दोस फ्लावर्स, जस्ट ऑब्जर्व द स्काई, समझो नेचर के एलिमेंट से सीखो, वो छोटी छोटी चीजों से सीखो, बुक से। वैसे मदर्स कहती हैं चलो पढ़ो, मेरी मम्मा कहती थी बुक छोड़ो और नेचर से सीखो। आई थिंक वो एक पॉइंट था जहां आई गॉट लकी हैविंग द मोस्ट सपोर्टिंग मदर इन द वर्ल्ड। तो मेरी मम्मा मुझे चीज़ों से सिखाती थी। मम्मा कहती थी, "ओके, दादी के पास जाओ, सिट विद हर फॉर 20 मिनट्स, कंपल्शन है। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख के आओ, किताबें नहीं सिखा पाएँगी।" आई वाज़ एन एकेडमिक टॉपर, आई टॉप्ड माय 10th, आई टॉप्ड माय 12th। वाह! शायद इसलिए क्योंकि मैं बुक्स के अलावा तजुर्बे से सीखती थी, एक्सपीरियंस से। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कि जब हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं ना, तो हम लाइफ में बहुत कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात थी। तो मैं ज़्यादा ये करती थी कि मैं बुक से ज़्यादा लाइफ से सीखने की कोशिश करती थी। तो शायद इसलिए इतनी जल्दी ज़्यादा अचीवमेंट्स हो गई। दैट्स इनक्रेडिबल। कहते हैं कि आपके अगर रोल मॉडल्स आपके पेरेंट्स में ही आपको मिल जाएँ, तो बिल्कुल। फिर तो आपको बाहर तो की दुनिया से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ योर मदर एंड सैल्यूट टू हर एंड सैल्यूट टू यू। मेहर, एक बात मेरे को बताओ, जब आप इतनी छोटी एज में, जब आप इतनी बड़ी-बड़ी लाइफ़ की बातें करना स्टार्ट किया या आपने समझना शुरू किया लाइफ़ को, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल था, उसमें कुछ उनको अलग हुँ। से नहीं लगा या वे दे कोऑपरेटिव और सपोर्टिव और दे मेड फन ऑफ यू? सो पीयर प्रेशर उस टाइम पे कुछ हैंडल किया अ, आपने? आई थिंक एक बहुत, जब हम लाइफ में थोड़ा ग्रो करते हैं ना, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम जितना ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मेरा मेन ट्राइब कोचेज़ एंड स्पीकर्स का ही हमेशा से रहा है। बट मैं जब कॉलेज में आई तो आई हैड माय फर्स्ट ग्रुप, जो जिनके साथ नई फ्रीक्वेंसी बैठी। देन आई चेंज्ड माय सेक्शन एंड आई गॉट एन अमेजिंग ग्रुप। आई हैव सम ऑफ माय गर्लीज़ फ्रेंड्स फ्रॉम वाओ! दूसरे कॉलेज। दे आर वेरी सपोर्टिव। समटाइम्स आई गो अप टू देम एंड से, आई एम सो लकी आई हैव फ्रेंड्स लाइक यू। दे विल सपोर्ट यू, लाइक दे लिटरली सपोर्ट इन द वेरी स्लाइटेस्ट थिंग्स। कि अगर मेरी कोई अचीवमेंट है, तो दे विल बी लाइक, "वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर दिस, वी आर दैट।" सो वो होते हैं ना आजकल के टाइम में, जहाँ पे जेलसी फैक्टर इतना है, दे आर सो सपोर्टिव एंड दैट टू गर्ल्स। तो मैं कभी-कभी जाके उनको कहती हूँ ना, आई लव यू सो मच, आई कांट फाइंड दीज़ जेम्स इन द वर्ल्ड। सो आई हैव माय 4 गर्ल्स, तो आई थिंक वहीं पे मेरा फ्रेंड वाला ज़ोन खत्म हो जाता है। सब हो आई हैव जाता है। देम, आई थिंक दे आर इनफ। दैट इज़ गोइंग टू बी मोर ऑफ अ सिस्टरली बॉन्ड। या वो कहते हैं, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर फैमिली। तो या कभी कोई फैमिली की शादी होती है, मैं उनको बताती हूँ, हम तो इनवाइटेड ही है ना, ठीक है हम आ रहे हैं। तो इतना है, मतलब सरप्राइज़ दे देते हैं, घर आ जाते हैं कि अपने घर में तो आ रहे हैं। और आई थिंक वो चीज़, अपनापन, इज़ समथिंग व्हिच रियली ड्राइव मी टुवर्ड्स देम। सो आई हैव देम एंड उसके बाद मन भी नहीं करता आगे, और क्योंकि यू आर सो दोस्तियाँ। satisfied and you are या so much content with the company that you have. बिल्कुल। एंड कभी-कभी 3M टॉक्स होती है ना, तो 3M एज़ अ कोच या स्पीकर कुछ ज़्यादा ही भावुक बातें निकल आती है। तो 1 घंटा मैं बोलती रहती हूँ, उसके बाद यार अब नींद आ रही है, अब हम सोने अब हम जा रहे हैं, सोने बस जा ठीक रहे है। हैं। तो वो दे आर वेरी गुड लिस्टनर्स। So I personally feel that any age group you always need your girls बिल्कुल। because your girls are your biggest support system. And if you have 3-4 girls around you, and I think आप पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत या ताकत आप में आ जाते हैं. You know when that girl support is there, okay, do whatever you want. We are there. Yeah. We are there. And my So that sister adding on to it. Matlab she is my bigger sister. I don't think I am a bigger sister. She is my bigger sister. Always protecting me and always telling me, this is done, this is ऐसे करो, वैसे करो. So the creative parts of all my businesses. So she is always giving an opinion. So I have these 4 friends and then comes my sister. तो ये 5 लोग, I'm like, ठीक है. you've got your I've got strong my support world. system, Yeah. and the leader of this strong support system is your mama. Yeah. I would put her as the head. Yeah, she is always the head. उनके आगे तो वैसे ही नहीं चलती किसी की। I think that rule goes for every mom. मम्मास के आगे बच्चों की चलती नहीं है. So, Meher, one thing I want to know, which is I'm curious, I'm sure that the people are also curious to know. You wrote your book, and that too a self-help book at the tender age of 14. 14 साल की एज में आपने अपनी पहली बुक लिखी है, वो भी सेल्फ हेल्प के ऊपर. So, what was the inspiration behind it, and how much time did you take to finish it, and uh, वो जर्नी कैसी रही आपकी? Like conceiving the idea and then going through it and do's and don'ts and then finally publishing it.
And I would want you to reveal the name of the book also so that we all can go and buy that book. श्योर। सो मैं बचपन से ना पोम्स एंड सॉन्ग्स लिखती थी, जो कभी ऑफ कोर्स पब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि प्रोफेशन वो बनाना नहीं था कभी। तो छोटी-छोटी पोम्स होती थी एंड मैं सबको सुनाती थी और बोलती थी रिव्यूज़ दो, एंड दे वर पैथेटिक, आई मस्ट से, बहुत गंदा फीडबैक आता था। तो मैं कोचिंग में आई व्हेन आई वाज़ इन माय अराउंड 10th, एंड कोचिंग में ये समझ आया कि टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी यू शुड राइट अ बुक। So we are here with someone who decided in class 10th that she has to become a लाइफ कोच। 10th क्लास में हमें ये नहीं पता होता कि हमने मैथमेटिक्स लेना है कि फिजिकल एजुकेशन लेना है कि बॉटनी लेनी है कि फिजिक्स लेना है। देयर इज समवन हु हैड डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू बिकम अ लाइफ कोच बिकॉज़ उसको दुनिया को जिंदगी जीनी सिखानी है। वाओ! यस मेहर, प्लीज कंटिन्यू। आई एम गेटिंग इम्प्रेस्ड एवरी मोमेंट। सो वहाँ पे फिर एक था कि आपको क्रेडिबिलिटी के लिए यू शुड हैव समथिंग एंड एज एन ऑथर। तो वो कब पोयम एंड सॉन्ग्स की जो पथेटिक होते थे जर्नी बुक में हुई, एंड आई मस्ट टेल यू जितना अच्छा लगता है जस्ट अ रियलिटी चेक कि आपने बुक लिखी, उसके पीछे की जो जर्नी होती है वो उतनी बहुत ज्यादा चैलेंजेस वाली होती है, बिकॉज द 1 year यू आर राइटिंग द बुक एंड आपका फर्स्ट ड्राफ्ट कभी अच्छा नहीं कभी होता, अच्छा नहीं बहुत ही गंदा होता है। आप रिव्यूज लेते हो, वो कहते हैं नहीं बेकार है, तो बुक ही नहीं लग रही है, तो पैराग्राफ लग रहा है, पूरा काटते हो एंड यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। होता। ऐसे मैंने 5 टाइम्स अपना ड्राफ्ट बदला। 6th टाइम आई वाज लाइक आई एम डन, आई डोंट वांट टू राइट फर्दर, मेरा हो गया। एक पॉइंट पब्लिश आता है, करनी है तो कर दो, नहीं तो हाँ, रहने दो। हाँ, मेरे तक करनी है तो कर दो, बता दो, वरना कोई बात कोई नहीं। बात नहीं। तो मैंने तब रिव्यूज लिए, तो मैंने कहा ये चीजें कुड बी बेटर, सो आई उसको मैंने फिर बहुत इम्प्रूव करा, एडिटर को दिया, उन्होंने तक मुझे फीडबैक दिया। सो ऑन द 7th ड्राफ्ट माय बुक वाज रेडी, इट वाज अबाउट टू पब्लिश, एंड व्हेन इट वाज पब्लिश एंड मैंने फर्स्ट ऑथर कॉपी ली, आई वाज लिटरली इन माय टीयर्स पूरा 1 साल। बिकॉज जैसे आप 4 AM उठो, यू गेट सम आइडियाज, आप रात को सोने से पहले यू स्क्रिबल, so it needs a lot of things to do, and And that too besides your studies yeah, besides my 10th and coaching. and So coaching. I used to take coaching classes also. I started on with taking coaching classes when I was in my 10th, and थोड़ा revenue generation model तो थोड़ा बाद में क्रैक हुआ, but coaching मैं लेती थी, clients लेती थी, and then in 11th mid it turned into paid sessions and courses. So सब कुछ time management के through, and most amazingly I won maximum number of trophies in my 10th and 12th. तो और कुछ रहता है? अचीवमेंट सेक्शन में आपने घर पे एक वो ट्रॉफीज के लिए वॉल बनाई हाँ, है कि नहीं बनाई है? लगाई अभी बची हुई है, वो स्टोर रूम में डाली हुई है, वो आती नहीं है पूरी। अरे फिर तो बड़ी दीवार करनी पड़ेगी बड़ी, ना। यू हाँ, नीड बिगर स्टोरेज फॉर दैट। या So here we have something. In the future, I see Meher standing in front of a trophy wall and getting the photo shoot done and being on the cover page of so many top magazines as a role model for the young generation that's coming up. We see dreams. सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। Till you don't see dreams, कभी भी आपकी जो भी चीज़ आपने सोची है वो पूरी नहीं होगी। So I think everything started with the अ ड्रीम, dream, right? अ थॉट, Thought. अ थॉट ऑफ डूइंग समथिंग The बिग, seed I या would say कि कुछ करना है। कि कुछ वो करना आज के टाइम में भी मुझे ऐसा लगता है, टू ऐड ऑन, जितना भी हम लड़की और लड़का को सेम मान ले, कहीं न कहीं सोसाइटी में ये चीज़ है है। I और agree. रहेगी, I कहीं न agree. कहीं। तो मुझे ये था कि अपने घर की बेटी बनने की बजाय अगर मैं बेटा बन के दिखा दूँ, तो आज भी दिस इज़ समथिंग आप डिफरेंट। एज़ अ बेटी ही इतना अचीव कर रही हैं, आई डोंट थिंक आपको बेटा बनने की ज़रूरत है। यू आर लाइक आई एम श्योर बिकॉज़ आई बीइंग अ मदर मायसेल्फ, आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ दिस यंग थैंक डॉटर। यू, सो थैंक यू। इमेजिन द काइंड ऑफ प्राइड योर मदर मस्ट बी फीलिंग ऑलवेज़। वो प्राइड के साथ थोड़ा डाँट भी देती हैं, बट इट्स ओके, उनका प्यार दैट्स एडेड कॉल्ड ऑन। फाइन ट्यूनिंग ऑफ मम्माज़। या ठीक है ना? वो फाइन ट्यूनिंग चलेगी लाइफ लॉन्ग बिकॉज़ वो फाइन ट्यूनिंग नहीं होती तो लाइफ से नहीं सीखते ना आप, हाँ, है वही। ना? So coming next, Meher, uh, like a young girl, normal 19-year-old girl, you हुँ, have you must be having your own dreams about life and what you want to achieve and where you want to go and grow. And at times life में चीजें they don't go as per your plan. या आप सोचते कुछ है होता कुछ है। एब्सोल्युटली। मैं तो my father has taught me one sentence, man proposes, God disposes. हुँ, So उसमें मेरे को ये लगता है कि अगर नहीं ठीक हुआ तो प्रभु की इच्छा है, कुछ ज़्यादा बेटर जो लिखा होता है अच्छे के लिए होता है। है ना? सो बट फ्रॉम यू बिकॉज़ यू आर सो यंग, यू आर जस्ट लाइक स्टार्टिंग ऑफ योर लाइफ, जब ऐसा कुछ होता है कि आपकी लाइफ में थिंग्स डोंट गो एज़ पर व्हाट यू विश्ड, व्हाट इज़ योर टेक? हाउ डू यू टेक इट? So I have had always this mantra,
कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। So whenever something as if happens, which is a challenge, तो my first thing is वो challenge नहीं है, वो एक learning है। पहले तो ये हाँ, याद रखना है। challenge नहीं है, वो एक learning है। या दिस तो वो इज फॉर एवरीवन हु इज सीइंग दिस शो। कोई भी चैलेंज आए तो दैट इज अ लर्निंग, बिकॉज इन द एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न समथिंग। अभी वो आपको चैलेंज दिख रहा है, दिस इज माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड दिस इज दिस यंग गर्ल्स मंत्रा फॉर लाइफ, दैट कोई भी चैलेंज अगर आता है दैट इज अ लर्निंग इन डिस्गाइज। सो नेवर गेट बॉगल्ड और हैसल्ड बाय इट। बिल्कुल। एंड सक्सेस आपको सक्सेसफुल बना सकता है, बट फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सो व्हेनेवर समथिंग कम्स, ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन आपको थोड़ा इमोशंस आते हैं, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम लाइक यू हैव टू बी स्टेबल इमोशनली, मेंटली। व्हाटएवर कमिंग इन योर लाइफ, इट्स गॉड्स ग्रेस। सो एक्सेप्ट इट। अगर तो वो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन पर ध्यान दो, प्रॉब्लम पर मत दो। अगर सोल्यूशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, फिर तो सोचने का भी कोई फायदा ही नहीं है। सो देयर आर टू वेज। तो कुछ भी प्रॉब्लम या चैलेंज आया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लर्निंग। वन वे, यू हैव अ सॉल्यूशन, फाइंड अ सॉल्यूशन। यू डोंट हैव अ सॉल्यूशन, छोड़ दो। लाइफ बिकम्स ईजियर। जितना सिंप्लिसिटी हो लाइफ में ना, उतना लाइफ बेसिक्स पे आ जाती है। आई रेड दिस समवेयर, लाइफ इज नॉट डिफिकल्ट, वी मेक इट डिफिकल्ट। यू मेड इट डिफिकल्ट। इट्स वेरी इजी, इट्स ब्यूटीफुल। हमें हमें लगता है ओ हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी तो फन है। जब बचपन में नहीं कमाते थे तो पेरेंट्स को बोलते यार हमें बस ऐसे कमाने हैं एक दिन। बड़े हो गए तो यार पैसे कमाने हैं, तो इट्स फन। हर चीज कितना न्यूनेस है। बचपन में हम मनी के पीछे नहीं भागते हैं, हम खेलते हैं कूदते हैं। फिर बड़े होके वी हैव आवर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, स्टडीज प्रॉब्लम, फिर आके जॉब की प्रॉब्लम। तो देखो लाइफ कितनी डायनेमिक है, तो वो डायनेमिसिटी तो ब्यूटीफुल है, हम उसी को प्रॉब्लम बना देते हैं। सो दैट इज द थिंग। मुझे लग नहीं रहा कि मैं एक 19 ईयर ओल्ड यंग गर्ल से बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है समवन हू सीन लाइफ, बीन देयर, डन ऑल एंड देन शी इज सिटिंग विद ऑल द विजडम ऑफ लाइफ। आई थिंक शी इज एन ओल्ड सोल जो ये विजडम के साथ ही पैदा हुई है शायद। So where I'm getting like very intrigued by your story and the kind of mindset you have. एक बात बड़ा सच-सच बताना, क्रम्बल हुए कभी? बहुत बार। जब क्रम्बल होते हैं तो क्या करते आई थिंक डीप ब्रीदिंग। हो? शांत हो जाओ, पहले अपने आप को शांत कर लो, उस चीज से डिटैच कर लो अपने आप को, और फिर सोचो उस उसके टाइम पे बारे में। दिमाग इतना काम कर रहा होता है डिटैचमेंट की तरफ। मैं तो जब क्रम्बल होती हूँ मेरा तो बिकॉज़ आई एम एन इमोशनल वेलनेस कोच, हम्म। आई प्रमोट अ लॉट ऑफ क्राइंग इन माय हम्म। कोचिंग सेशंस और विद माय क्लाइंट्स। तो जब वो कहते हैं ना मैम कल हम बड़ा रोए तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। बिकॉज़ मुझे लगता है कि कुछ तो निकला इनके अंदर से, बिल्कुल। राइट? आई फाइंड दैट एज़ अ ब्रेक थ्रू। हम्म। सो व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई हैव दोज़ इमोशनल मोमेंट्स, आई क्राई और मैं खुल के रोती हूँ। सो मैं वो वाली क्रम्बलिंग पूछ रही कि वो वाला जब क्रम्बल होता है उसके बाद मुझे पता है डीप ब्रीथिंग करनी है, अपने आप को शांत करना है, म्यूज़िक चलाना है, पेप अप करना है। सो बट व्हेन दैट मोमेंट हैपेंस, हम्म। जब आपको लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर से भारीपन हो रहा है, सो व्हाट डू यू डू? क्या क्या आपका रिएक्शन कैसे होता है? मुझे नेचुरल निकलता है। सो क्रम्बलिंग, आई थिंक ऑफ कोर्स क्राइंग इज अ वेरी वेरी गुड थिंग जो आप कर सकते हो। मैं जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, वो कहते हैं नो एक्सप्रेशन नहीं, यू नो व्हेन यू एक्सप्रेस इमोशंस यू आर वीक। एंड मैं बस वो नोशन उनका चेंज करवाती हूँ, बिकॉज आप ह्यूमन हो, हुँ। आपको इमोशंस फील होंगे। अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप उनको सप्रेस कर रहे हो। सप्रेस, यू सी पीपल को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या होते हैं जनरली ब्लॉक्ड 90% इमोशंस है। सप्रेस्ड इमोशंस। या। तो जब आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, फॉर स्पेशली फॉर बॉयज वी विल बी वीक। तो ऑफ कोर्स क्राइंग इज नॉट समथिंग कि आप उससे वीक हो जाओ, इट्स लाइक आप इमोशंस वेंट आउट कर रहे हो। यू आर सैड, यू आर जस्ट टेलिंग पीपल यू आर सैड, सो यू नॉट वीक। सो आई तो इन माय सेशंस आई ऑलवेज से, यू नो, इफ यू फील लाइक क्राइंग प्लीज क्राई। एंड मोस्टली सेशंस में पीपल क्राई व्हेन आई डू। मैं उनको ओपनो ओपनो करवाती हूँ या ओके। इनर चाइल्ड हीलिंग करवाती हूँ। So they cry and they say, "Oh, we are sorry, we are sorry." I'm like, "It's okay. It's meant for crying." बिकॉज़ वी आर नॉट टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू Yeah. एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ एंड अपने इमोशंस को लेके इतना गिल्ट क्रिएट किया जाता है ना, हाँ, लड़की वही। की तरह क्यों रो रहे हो? लड़कियों का And काम है रोना। सो सो बिल्कुल, मेनी डायलॉग्स दैट वी हैव if you're हर्ड। attached to someone and you tell, "Okay, I'm attached to you," that is not a weakness. Attachment is something, होती है, इंसान है, रोबोट्स नहीं है हम। या। तो ऐड ऑन टू मुझे ऐसा भी लगता है कि जब हम इतना फ़ोन और इतनी रोबोटिक्स दुनिया में टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, हम इमोशनली पीछे जा रहे पीछे हैं। जा रहे हैं। क्योंकि रोबोट्स को बनाते-बनाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ह्यूमन्स रोबोट्स आई बन जाएँ। कंप्लीटली एग्री मेहर, बिकॉज़ बीइंग एन इमोशनल वेलनेस कोच, मेरे को भी हमेशा ये लगता है कि हम इमोशनली डिप्राइव्ड सोसाइटी हुँ, बनते जा रहे हैं। इतना बिल्कुल। ज़्यादा मैकेनिकल लाइफ होती जा रही है कि इमोशंस को ना इंसान ने एक साइड के ऊपर रख दिया है। हुँ, तो देख लेंगे इसको बाद में, अभी हम ये
अचीव कर लें। वो अचीवमेंट और वो मटेरियल लाइफ में इतना बिजी हो गया हुआ इंसान। बट आई ऑलवेज फील कि अगर आप इमोशनली हेल्दी हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, बिकॉज बिल्कुल। दैट इज हाउ यू आर गोना एंजॉय लाइफ। लाइफ इज मेंट फॉर एंजॉयिंग। इतना आगे मत भागो कि पीछे जब मुड़ो तो रास्ता खाली हो, कोई भी ना हो। तो वो क्या फायदा अचीवमेंट्स का जब पीछे है ही नहीं कोई सेइंग वी आर प्राउड ऑफ यू बोलने के लिए ही नहीं है। आज कहते हैं हम आपने सुना होगा हम घर से दूर जाते हैं घर बनाने के लिए। वो बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि पीपल गो टू डिफरेंट सिटीज़ सो दैट दे कुड अर्न एंड एंड मेक एंड अ मेक घर। घर से दूर जाके घर बना रहे हैं। वो कैसा घर हुआ? सो वो चीज़ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बनाते-बनाते खुद एक दिन फ़ोन की दुनिया में ही कैद हो जाएँ। खुद से ही दूर हो आज जाएं। लास्ट टाइम आपने आई लव यू कब बोला था अपने फैमिली मेंबर्स को? कब बोला था? याद भी नहीं होगा आपको। खुद को कब बोला? खुद को कब खुद बोला को था? कब बोला? लोगों के साथ क्या अपने साथ कब टाइम स्पेंड किया था लास्ट? भूल आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना इज़ नॉट अपने साथ टाइम स्पेंड करना, वो तो फ़ोन के साथ आपने किया। 24 में से जब 20 घंटे आप फ़ोन के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो टाइम नहीं निकलेगा। तो फ़ोन को दूर करो। हमारे घर में एक रूल है कि संडे को 4 ओ क्लॉक टू 6 ओ क्लॉक मतलब इवनिंग टाइम में वी पुट आवर फ़ोन्स इन द डिफरेंट रूम्स, लॉक अप एंड हम ज़बरदस्ती फैमिली बैठते टाइम हैं। बैठते हैं। इट्स अ कंपल्शन। मेरी मम्मा ने बनाया है कि समव्हाट में यू हैव टू सिट टुगेदर। जो चीज़ शक्ल हम देखो लोग एक-दूसरे बचपन में की। नेचुरली करते थे, हमारी एज ग्रुप हाँ, में बचपन में ये नेचुरल होता था बिकॉज़ फ़ोन नहीं होते थे नहीं ना, होते थे। तो शाम को 4 से 6 से 7 बजे का टाइम होता ही हमारा फ्रेंड्स के साथ खेलने का था, हाँ, या लूडो हो गया या कैरम खेल लिया, ये सब चीज़ें। और आज की डेट में वो देखो वो टाइम कंपल्शन एज़ अ रूल बन रहा है कि वी हैव टू लीव द फ़ोन असाइड एंड बी विद द फिज़िकली प्रेज़ेंट विद द फैमिली मेंबर्स। समथिंग जो हमें सपोर्ट करना चाहिए था, अब हम उसी की जो हमारे लिए बना था, हम अब उसी की स्लेव बनते जा रहे ये हैं। दैट बनते इज़ जा रहे अभी तो हीलिंग टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ रही है, होपनोपनो की ज़रूरत पड़ रही है। पहले कहाँ हीलिंग होता था, पहले तो हग करते थे एक-दूसरे को, हाँ, वही हीलिंग खत्म, होती थी, खत्म वही होता था। कि आओ हग करते हैं। आज तो हग करने में भी एक वो होती है, क्योंकि या ह्यूमन बॉन्ड खत्म हो गया, एक्जिस्टेंस ही नहीं ह्यूमन बॉन्ड फिज़िकल की। टच की इम्पोर्टेंस जो है ना वो हुँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वी ह्यूमन बीइंग्स जब यहाँ हक की हम बात करते हैं, यू डोंट इवन नो हाउ थेरापेटिक इट इज। बिल्कुल। दिन के 8 हग्स आर कंपल्सरी फॉर योर नेचुरल इमोशनल ग्रोथ। 8 हग्स। एंड आप अपनी लाइफ में सोचिएगा कि क्या आपको दिन का एक भी वो सुपर स्ट्रॉन्ग इमोशनल हग मिलता है किसी से? अगर नहीं है तो स्टार्ट लिस्टिंग आउट पीपल जिनसे आपको रोज हग्स लेने हैं। इट्स अ कंपल्शन। इट्स अ कंपल्शन। So, coming to one more achievement of yours, Meher, because आपने इतनी छोटी एज में इतना कुछ अचीव किया and one thing is गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम है, हाँ राइट? जी। वो क्या जर्नी है और वो क्या चीज़ है जिसमें के लिए आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आया है एंड व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? So being a speaker, something which I love the most in the world is a stage and a mic. और बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को जब मेरा खत्म हो जाता है बारी तो मेरे को धक्के मार के निकाला जाता है क्योंकि मैं नहीं निकलती हूँ, मैं उतरती ही नहीं हूँ। सो आई रिमेंबर आई वाज़ इन आई थिंक 5th एंड 6th क्लास जब मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ी थी एंड उसके बाद मैं शायद कभी उतरी ही नहीं बिकॉज़ मैं मेरे को इतना पसंद है। पब्लिक स्पीकिंग। सो पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशनल स्पीकर। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। 5 सितंबर 2024 टीचर्स डे पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था जिसमें यू इंस्पायर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन कोलैबोरेशन विद सक्सेस ज्ञान इंस्टीट्यूट। सो उसमें आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स हु कुड इंस्पायर एंड मोटिवेट द पीपल एंड आई गॉट माय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर दैट। सो हियर आई वुड लव टू टेल एवरीवन दैट अगर आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम करना है, सो यू डोंट नीड टू क्रिएट एनीथिंग इंडिविजुअली। आप एक हम्म। कोलैबोरेशन में भी आप ये अचीवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं बिकॉज आई रिमेंबर इसमें मेरे बहुत सारे या कोचेज और फ्रेंड्स जो हैं दे वर अ पार्ट ऑफ दिस एंड मैं उनके सोशल मीडिया पे देखती थी कि उनको मिले, सो दैट्स बीन कमेंडेबल। आई रियली अपलॉड द वे यू हैव ब्रॉट अप योर एंटायर जर्नी एंड 10th क्लास में सोच के कि लाइफ कोच बनना है और उसमें आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है आपने मेहर। थैंक यू। वेर यू आर एन ऑर्डिनरी नॉर्मल गर्ल, राइट? लाइफ कोचिंग तो है, लाइफ कोच हो, दूसरों की आप तकलीफों को उनको लाइफ को हैंडल करना सिखाते हो। लेट अस कम टू हार्ट ब्रेक्स। हम्म। आपकी एज में, आपकी जनरेशन में छोटी-छोटी एज में लव अफेयर होते हैं, फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है, लव अफेयर होते हैं, फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है। सो आपने अपने आस-पास काफ़ी हार्ट ब्रेक्स देखे होंगे बिल्कुल। एंड जब आप वो हार्ट ब्रेक्स देखते हैं, उसका इमोशनल ट्रॉमा उस इंसान के ऊपर कितना होता है और कैसे आप
एज अ फ्रेंड और एज अ मेंटोर? बिकॉज हर वक्त आपके पास हर कोई कोचिंग के लिए नहीं आ सकता, राइट? राइट। तो आपका टेक क्या रहता है कि एक छोटी टेंडर एज में जब हार्ट ब्रेक हो जाता है, जहाँ पर पता भी नहीं है कि यार प्यार क्या चीज़ होती है, राइट? तो उस टेंडर एज में जब आपके पास कुछ ऐसे किसी का पता लगता है कि उसका हार्ट ब्रेक हो गया, तो आप कैसे हैंडल करते हो उस इंसान को? आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल एंड देन गोइंग टूवर्ड्स आगे थोड़ा एक्सपैंड करना। जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है ना, तो आई थिंक तब उसको वैसे भी कोचिंग हेल्प नहीं कर सकती। अब उसको शायद वो अपनापन, वो हीलिंग, वो वो ह्यूमन ह्यूमन टच टच हील चाहिए कर होता है। सकता है। एंड आई थिंक वो चीज़ मैं यहाँ पे क्रेडिट दूँगी टू माय फ्रेंड्स, बिकॉज़ वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि कैसे यू कैन जस्ट बी एन इमोशनल सपोर्ट। कहते हैं ना, व्हेन यू गो थ्रू दीज़ थिंग्स यू जस्ट नीड अ गुड लिस्टनर। गुड लिस्ट। कि आप जिसको हज़ार बार कहानियाँ कर पाओ, थ्योरी में यू अच्छा ठीक है ट्रॉमा हीलिंग कर दो, ये कर दो। बट वो इमीडिएट चीज़ क्या है जो चाहिए? वो है ह्यूमन इफेक्ट, ह्यूमन बॉन्ड, जो आजकल मिसिंग है। तो वही चीज़ हो जाती है। यू जस्ट नीड अ हग, यू जस्ट नीड समबडी हू कुड लिसन टू योर स्टोरी, हू कुड रियली टेल यू दैट ये जो भी रिजेक्शन है, ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। ये एक लर्निंग है, क्योंकि हार्ट ब्रेक भी एक रिजेक्शन हुआ। तो वहाँ पर आते हैं मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव। और वहाँ पे तब आप किसी को नहीं बोल सकते अच्छा ओके सेल्फ लव इम्प्लीमेंट करो, वो उस स्टेट में ही नहीं है। तो तब हेल्प होता है जब आप उसके साथ सिर्फ बैठो, उसकी कहानी शांति से सुनो, उसके वो जितना इमोशन। वेंट आउट करना चाह रहा है इंसान, हाँ, उसको बस और निकालने दो। हाँ, बस निकाल दो। यही होता है इमीडिएट चीज़ जो हार्ट जितना वो ब्रेक्स के ब्लर्ट आउट उसमें कर दे, करते हैं। वॉमिट आउट कर दे, उतना अच्छा है। Bilkul. And as I told you, my friends are very good listeners. So, and even I am. I'm trying to be a more good listener, learning from them. My mom is also very good listeners. So I think I'm lucky. I have very good listeners around me. But उसके बाद ठीक है, you go with trauma healing, you go with Ho'oponopono, which is a very good technique, which says, I'm sorry, please forgive me, thank you, I एंड love आई लव you. यू। Yeah, you can do EFT tapping, you can do inner child healing. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद आप रिलेशनशिप मास्टरी का कोर्स लो, आगे सीखो, बट इमीडिएट इज यू नीड अ गुड लिसनर एंड यू नीड गुड फ्रेंड्स, यू नीड गुड फैमिली मेंबर्स, यू नीड गुड ह्यूमन बॉन्ड्स, नॉट निकल बॉन्ड्स। ग्रेट। मुझे ना एक्चुअली में नहीं लग रहा कि मैं एक 19 ईयर ओल्ड लड़की से बात कर रही हूँ। देयर इज़ समवन हू इज़ अ प्रो एट अ सब्जेक्ट, समवन हू इज़ डन डीप इनर वर्क ऑन हर ओन सेल्फ। The kind of patience, the kind of posture, the calmness that I am getting from her, because मैं एनर्जीज़ पढ़ लेती हूँ, आई एम एन एनर्जी मेडिटेटर, तो आई एम लाइक बड़ी शांति से बैठकर मेहर बात कर रही हैं मुझसे, और लाइफ की इतनी बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें। आई थिंक व्हेन आई वाज़ 19 इयर्स ओल्ड मेरे पास इतनी विज़डम नहीं थी। 19 इयर्स ओल्ड में तो आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि अच्छा भैया अब तो शादी होने वाली है, क्या करना है, बिकॉज़ आई गॉट मैरिड वेरी यंग। वी आर गोइंग टू प्ले अ क्विक रैपिड फायर राउंड विद यू मेहर, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ब्लैटेंट एंड ऑन द स्पॉट, ओके, नो थिंकिंग अलाउड। श्योर। ठीक है? हम कॉफ़ी विद करण से कम थोड़े हैं। ठीक है, एंड देन बस यू हैव बस कॉफी मिसिंग है। कॉफ़ी, आपको चाहिए कॉफ़ी, अभी हम दे देते हैं, बट देन यू आर गेटिंग अ गिफ्ट हैम्पर आल्सो आफ्टर दैट। ओके, ठीक है? इफ आई विन। यस। सो लेट्स अब तो गेट टू अच्छे से खेलना पड़ेगा फॉर द गिफ्ट हैम्पर। यस। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट्स अ वेरी फन रैपिड फायर राउंड. The answers has to be very quick and quirky. One word that describes you perfectly. इम्परफेक्टली परफेक्ट। Wow. If you weren't a life coach, what would you be? एन एक्टर और अ स्ट्रगलिंग एक्टर, एनी ऑफ द वेज। Now मुझे I can एक्टिंग, guess because the kind of expressions she's making, you'll be a oh, very I good have actor. done theater, I've done all the acting courses. कुछ रह So गया? नहीं, मैं बहुत बचपन से बहुत ड्रामेबाज़ थी, सो एक्चुअली मेरा स्पीकिंग का यहीं से शुरू हुआ था। मेरे को एक्टर बनना था, बट समबडी, मैं एक एक्टर से क्लासेस ले रही थी फॉर एक्टिंग कि मैं आगे जाके कास्टिंग में करूँगी। उन्होंने कहा आप ना बहुत अच्छी स्पीकर हो, मैं आपको स्पीकर का बताता हूँ। और उन्होंने मेरे को स्पीकर का करवाया कि आप अच्छा मैं आपको आरजे, वॉइस मॉड्यूलेशन ये सब सिखाता हूँ, एक्सप्रेशन सिखाता हूँ। एंड एक्टिंग मैंने एनरोल किया था, मैं स्पीकर बन गई और स्पीकर पब्लिक स्पीकर बन गई। जैसे ना तो मेंटोर वो कहते हैं ना, एक जौहरी हीरे को पहचान सकता और है। आई थिंक ज़बरदस्ती कराया था उन्होंने, मेरे को तो करना ही एक्टिंग था। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ही वांटेड टू बी अ फुटबॉलर, और उनके कोच को लगा दैट ही इज अ गुड क्रिकेटर, तो फुटबॉल हुँ, से उठाकर उनको क्रिकेट में फेंका गया, और वो कभी भी क्रिकेटर बनना नहीं चाहते थे, बट सी द काइंड ऑफ एक्कोलेड्स ही हैज अचीव्ड इन लाइफ। सो आई थिंक आपके जो भी मेंटोर थे उस टाइम पे, उन्होंने देखा हुँ, है दैट यू आर बेटर एट पब्लिक स्पीकिंग। याह। ओके, द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर गूगल्ड? हाउ टू बी सक्सेसफुल इन 2 डेज़, हाउ टू मेक मनी इन 1 आवर, तो सो यू दीज़ गॉट वर द आंसर्स? नो, मुझे फिर समझ आया इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। धीरे-धीरे होता है, 2 दिन में नहीं होता। तो एक एक दिन में पैसा नहीं, एक नहीं, और घंटे में पैसा नहीं सक्सेसफुल भी कमा नहीं होता। सकते, आप 2 दिन में सक्सेसफुल नहीं हो फिर सकते। उसमें फिर मेरी मम्मी ने बोला यू हैव टू डू हार्ड वर्क, गूगल छोड़ो काम करो। तो वन सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट्स यू।
लग जा गले, आई एम अ वेरी पैथेटिक सिंगर, बट अगर आप इसकी लाइन सुनोगे ना, ये आपको लाइफ का सम अप देती है। लग जा गले कि फिर फिर ये हँसी रात हो ना हो हो, ना हो, शायद शायद फिर इस जन्म में मुलाकात बात हो ना हो हो। ना हो। सो लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो अगले सेकंड क्या होने वाला है। That तो is one of my favorite songs. I can ओह! listen to it on repeat. आई कैन, मतलब पूरा प्लेलिस्ट रिपीट होती है। एंड व्हेन यू से ना हाउ डू यू कोप अप विद क्रम्बलिंग एंड ऑल, आई थिंक ये गाना सुन के थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स विल गो। इफ देयर आर सैड टाइम्स, देयर विल बी हैप्पी टाइम्स, इट्स ओके, चलो But you know, बी हैप्पी। these two sentences of this song, लग जा गले कि फिर ये हँसी हुँ, रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना मुलाकात हो हो, ना हो। that means live in the present moment. This हाँ, is the now. बिल्कुल। कल पता नहीं क्या हो. I always say हुँ, कल हो ना हो, ज़िंदगी ना हाँ, मिलेगी दोबारा. हाँ, So this song literally says that live the moment. Wow. So that's one of my favorite songs. हमारी मैचेस सिमिलर है। So your dream collaboration with the public figure. मिस्टर टोनी रॉबिन्स सर, Wow. ही इज़ माय इंस्पिरेशनल फिगर। आई जस्ट वांट, जैसे वो आई हैव मेरा फ़ोन कवर है, उनकी फ़ोटो है एंड वो ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। Mm-hmm. और मैंने कहा वो सेम एक दिन मैनिफेस्ट एंड विजुअलाइज़ करके मैं ही उतने बड़े स्टेज पर एंड Wow. You विद will हिम, स्टैंडिंग surely विद हिम, दैट You वुड बी will माय परफेक्ट surely ड्रीम you मोमेंट। will surely achieve that. I am so confident of this thing. Your most awkward stage moment. सो ये थोड़ा-सा लंबा स्टोरी है, आई डोंट थिंक ये Please, रैपिड please फायर up हो to now. जाएगा। इट वाज़ माय फर्स्ट ट्रॉफी व्हिच आई वॉन, इट वाज़ इन माय सेंट मार्क्स स्कूल। तो मैं एंड देयर वाज़ वन पार्टनर एंड वहाँ पे ना हमारा नेम अनाउंस हुआ। मैं उसको देख रही, हम ही हैं एंड शी वाज़ मैं वहीं से उसको छोड़कर भाग गई स्टेज पर एंड आई एम लाइक, मतलब ट्रॉफी होल्ड कर रहे थे, लाइक दे दो प्लीज़, ट्रॉफी प्लीज़, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम एंड मेरी पार्टनर वहीं पे बैठी हुई है। वो अभी तक चली भी नहीं चली है। भी नहीं है तो मैं and स्टेज पे ट्रॉफी दे दो, ट्रॉफी। प्लीज़ वेट फॉर योर पार्टनर, लाइक प्लीज़ मैम कैन आई होल्ड इट प्लीज़? जस्ट लाइक 1 सेकंड। you're super सो excited. या इट वाज़ सो ऑकवर्ड एंड वहाँ पे इतनी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ खड़े हुए थे एंड शी केम एंड शी वाज़ लाइक, मेरे लिए 2 मिनट भी रुका नहीं जाता ना? ठीक है। तो वो इतना ऑकवर्ड था, उसके बाद शी वाज़ लाइक, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यू डिडन्ट वेट फॉर मी। दैट वाज़ माय फर्स्ट But that ट्रॉफी I इन think वो awkward के 2017। बजाय वो I think memorable moment बन गया लाइफ हाँ, का. एंड वो उन्होंने मेरे से फ़ोटो खिंचवाई कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, आपने इतना स्टेज पर जो किया है। तो इट वाज़ 2017, उसके बाद बस फिर मेरी वो हमने एक अलमीरा स्पेशली बनवाई उस Mhm. ट्रॉफी के लिए, रो-रो के बनवाई एंड वो अलमीरा पूरी भर गई, एक और अलमीरा आ गई, वो भी भर गई। I'm sure सो multiple Almiras आएंगे. You'll have a whole huge hall full of your trophies and awards. I'm so sure about that. that was St. Mark's School, मुझे वो स्कूल भी याद है। When I am in college right now, I just came across one of uh, like my peers, he was from St. Mark's। तो वो एक बड़ा वो चीज़ हो गई कि माय फर्स्ट ट्रॉफी वाज़ फ्रॉम सेंट मार्क्स एंड ही बिकेम माय वेरी गुड फ्रेंड, सो ही वाज़ आल्सो फ्रॉम सेंट मार्क्स। Wow. तो वेरी गुड मेमोरीज फ्रॉम द स्कूल। A guilty pleasure TV show or movie. राइट नाउ इट्स मिसमैच्ड, काफ़ी लेटेस्ट है, टीनेज लव स्टोरी है तो मैंने सुना है आई एम नॉट अ टीवी बफ, आई एम नॉट अ मूवी बफ, सो मैं या देखती नहीं हूँ बट इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स आती हैं या लोगों से सुना आई एम हुआ अ इट्स गोइंग ह्यूज गुड. फैन ऑफ दैट, इट्स वेरी नाइस। अब मैं भी देखूंगी. If happiness were a food, what would it be for you? गोलगप्पे एंड छोले भटूरे, आई जस्ट लव बीइंग अ पंजाबी, आई कांट गो विदाउट छोले भटूरे। तो इट वाज़ लाइक हमारे मम्मा कहती है कि नो यू हैव टू जस्ट बाहर का खाना है हफ्ते में 1 बार। तुम्हारे वहाँ पे ट्यूसडे मार्केट लगती है छोले भटूरे वाला। आई एम लाइक, आई एम गोइंग टू पार्क मम्मा, आई एम होपिंग शी डजंट सी दिस। आई एम गोइंग टू She's पार्क। definitely going to see it because this is going to be on YouTube and all the reels are going to be on Instagram. ओके फाइन, मैं उनको थोड़ा पटा लूँगी कि ओके, इट वाज़ जस्ट, तो मैं ट्यूसडे मार्केट Secret जाती हूँ। spilled today. या एज़ वी कम टू द एंड, तो मैं ट्यूसडे मार्केट जाती हूँ एंड वहाँ से छोले भटूरे इज़ लाइक माय मस्ट, इज़ माय लाइक गिल्टी वो चीज़ कि इट्स लाइक सेल्फ That's a रिवॉर्ड। happiness आज food. आज बहुत काम कर लिया, आज छोले भटूरे खाएँगे। तो अपने आप को वो चीज़ Good. सेल्फ पैम्परिंग So थोड़ा, गोलगप्पे तो मैं भी खाती हूँ. वो तो मेरे हम फेवरेट। इकट्ठे चलेंगे. मैंने हर जगह के गोलगप्पे ट्राई किए हुए खाएंगे हैं। and then लग जा गले सुनेंगे. या छोले भटूरे भी। So your go-to motivational mantra whenever you feel low in life, what is that one mantra or one sentence or one quote that picks you up? आई थिंक वही कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, बिकॉज़ अगर हम फोकस सिर्फ फल पे होंगे तो एक्शन लाइक हमें एक्सपेक्टेशंस हो जाएँगी। मैं तो हमेशा चीज़ कहती हूँ, लाइफ में कुछ भी करो ना, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लाइफ 90% सॉर्ट हो जाएगी खुद ही। सारे तो दुखों की जड़ ही एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस है. लोगों से एक्सपेक्टेशंस, चीज़ों खुद से से एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस. खुद से एक्सपेक्टेशन मत कितना छोड़ दो। प्रेशर हम लोग क्रिएट हाँ, करते हैं अपने प्रेशर ही ऊपर. एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन छोड़, लाइफ इज़ सॉर्टेड यार, इट्स फन यार। सीख लो, छोटी सी बच्ची जस्ट से लिव सीख लो. इट। Just live your life. Leave away all the expectations. Wow. This was nice and you passed with 100% ओह! आई marks एम गेटिंग अ and गिफ्ट हैम्पर yes, नाउ, I'm getting the ये gift hamper.
So Meher, the entire story about Meher Speaks, that Hmm. is your Insta handle, Meher Yeah. Speaks. So it's been very, very interesting because when I saw you, I saw this little tiny bundle. मैंने कहा ये guest है and achievements की list इतनी बड़ी है, but the conversation has been so natural Hmm. and हम लोगों ने सब आपके मन की बातें, how you started your journey and whatever I wanted to know, because यहाँ पर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इन सब में से अगर एक इंसान भी हमारे इस पॉडकास्ट शो से या किसी भी गेस्ट से इंस्पायर हो जाता है, तो दैट इज मिशन अचीव्ड फॉर मी। इट्स मिशन अचीव्ड इफ वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म इवन वन लाइफ, दैट इज, वो कहते हैं ना कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ इज कंप्लीट। सो इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग टू स्पीक टू यू मेहर। जाते जाते वन सेंटेंस और वन स्मॉल gist of your journey for the youngsters or for everyone around, पिक अपना क्या एक जिस्ट देना चाहते हैं लाइफ के बारे में? आई थिंक इट्स माई फेवरेट। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं इसी लाइन से स्टार्ट किया था इन दिस जर्नी। जब मैंने स्टेप इन किया था, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, प्लीज लिव। लाइफ इज वेरी फाइनाइट, हमें लगता है इनफाइनाइट है। जो करना है ना कर डालो, एंड जस्ट परस्यू योर पैशन। अगर आप यूथ की बात करो तो आई थिंक एक चीज है कि पैशन और प्रोफेशन में ना सबसे बड़ी जंग होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार हैव द गट्स, परस्यू योर पैशन, बिकॉज पूरी जिंदगी वो करना जो आपको खुशी दे वो डील यू मनी, ट्रस्ट मी। यू हैव टू जस्ट पुट इन एफर्ट्स। वो वे बहुत मुश्किल है, आई नो। आपको हाथ पे रख के मनी नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, बट you will have that happiness. So just do it, because when I see not being an engineering doctor, I took science initially, and मेरे को याद है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, मेरी मम्मा को कहा था मम्मा मैं नहीं कर सकती, आप बैठ जाओ करने, प्लीज टेक क्लासेस ऑन। इंटरेस्ट ही नहीं था हाँ, उसमें। इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि मेरे पूरा घर में सबने साइंस ली हुई है। सो मेरे पे एक प्रेशर था, मैंने कहा मम्मा मुझसे तो नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट डू साइंस। बीइंग अ टॉपर आई सेड आई कैन नॉट डू साइंस, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। एंड मैंने कॉमर्स ली, एंड आई जस्ट, मैंने इस वे में अपना वो किया, एंड आई जस्ट लव इट। ईच डे व्हेन आई वेक अप आई नो आई हैव अ पर्पस ऑफ माय लाइफ। सो जस्ट फाइंड दैट पर्पस एंड विल जस्ट बी हैप्पी ऑल योर लाइफ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने बर्थ लिया इस लाइफ में तो यू हैव अ पर्पस, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। वो आपकी खोज है जो सेल्फ सेल्फ खोज से आएगी। सो जस्ट फाइंड दैट एंड जस्ट स्माइल एवरी डे, यू विल हैव अ रीजन टू वेक अप। नहीं है तो कुछ कमी है लाइफ में। सो या Thank you so much, Meher. And I hope that you all are going to watch this entire podcast, this entire episode that we are going to air very, very soon. And इसको बार बार जाके सुनिएगा, the kind of conversations me and Meher have had, and जितने life के insights Meher ने दिए, truly, truly remarkable journey of this young girl. And this is just the beginning, Meher. I can see you with standing with Mr. Tony Robbins and, handling his work and he being so proud of you as his mentee. I can see that या vision for you, and I bless you with all the love and support that I can always give you. थैंक यू, आई एम And जस्ट होपिंग दैट, फिंगर्स क्रॉस्ड, मैनिफेस्टिंग। wishing you all the best in life always. थैंक यू सो मच, Always. रियली मीन्स अ लॉट। So, Meher, this is for your manifestation journey. So, this is an affirmation journal. This is my happiness merchandise for the happy world within. वाओ, I hope it helps you in सॉरी your मेरे को थोड़ा manifestation journey. वो हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है देखने के लिए, बट इट्स टू ब्यूटीफुल। And this is an affirmation frame for you. थैंक यू। And these are our happiness reminders where whatever you read during the day, see, the universe has bigger plans for me and I'm ready to claim them. This has come out. So वाओ, this you can put on your study table or so this is for you. सो Hope this नाइस। helps you in your manifestation journey. या आई थिंक अभी मैंने फिंगर्स क्रॉस करके बोला, आई मैनिफेस्ट, आई हैव गॉट थिंग्स Okay. टू मैनिफेस्ट। या थैंक यू सो मच, दे आर अमेजिंग। थैंक यू। ये आई वन रैपिड फायर, मैं जीत गई। So Meher won the rapid fire. या